Alright students, welcome to our discussion on electrostatics. This is part 7 of the series. I'm Harsh Kapil. So far we have discussed about basics about electric charge, point charge, its properties, how to charge a conducting non-conducting bodies, different methods, most popular methods. There are various methods, but we learned basic methods. What is Coulomb's law? How to find out the force created by a point charge. Okay, force in the vector form. Okay, that was discussed. Superposition principle, that was discussed. Electric field, how to find out the electric field due to a point charge, or even the charge is spread on a wire. Okay, so these kind of things, these were basic things were discussed, and with multiple examples. Now in the last class we discussed about Gauss law to find out the electric field for simple shaped bodies as per the JE syllabus. Okay, so we understood one example of a thin wire to calculate the electric field. Okay, so now we will discuss more examples, and more uh, body shapes will be brought in the picture so that it helps you understand Gauss law properly. So let's start our discussion. Okay, these are some institutes and information where you can always get in touch with me for personal guidance program or any kind of problem that you are facing with your physics related to class 11th or 12th standard, or any competitive exams like JEE or NEET. Okay, and during the lockdown, do not stop learning. You can use online facilities being provided by multiple platforms and institutions. Okay, you can even ask me to prepare any lesson for you where you are facing difficulty. I will immediately upload it for you. You can write in the comment box, right? But keep learning. Okay, we discussed basic of the electric charge. Where does it come from? Properties of the charge, methods of charging a body. Okay, conducting non-conducting bodies. Okay, so grounding concept, that is really important. You will see in the circuit when we ground a body, or conducting or not conducting body, what is the actual effect. Okay, how to find out the force between two charges using Coulomb's law. ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं. Coulomb's law वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है. ओके, यूनिट ऑफ चार्ज कूलॉम होती है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, सब बेसिक चीज़ें हमने. रिलेटिव परमिटिविटी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ओके, रॉड विद लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, दीज वर डिस्कस्ड. न्यूटन्स लॉ का एक एग्जांपल लिया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हुए कॉन्सेप्ट को. और वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कीप रिवाइजिंग योर क्लास 11th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट so that it helps you understand these concepts in electrostatic chapter. Okay, so keep revising those concepts of 11th standard. Electric field. Okay, what is the formula for that? Electric field lines. What are the electric field lines? Okay, these are the virtual lines where you can at any point draw a tangent and find out the direction of the electric field. Okay, these were discussed. Parallel plate capacitor and the voltage and electric field between them, how to draw the electric field between these parallel plates. Okay, so these superposition principle and multiple examples were discussed so far to help you understand. So the thing that we were discussing was of electric flux. What is it? Okay, how do we calculate? What is the formula? And then we came to the Gauss law. Okay, and this Gauss law helps us find out the electric field flux as well. Okay, for as per the syllabus we have to keep it focused towards the simple shaped bodies that we will be covering and discussing here. Okay, some basics I have already told you, how explained you the Gauss law as well. Okay, for the point charge, this was the point charge that we discussed, and this is the Gaussian surface that is chosen for a point charge because of the symmetry. Okay, at every point at a distance r from the point charge, the electric field remains same. Okay,
That is why we chose the Gaussian surface in a spherical form, okay, around this point charge that we already discussed. Area vector and electric field vector both are parallel, and their dot products becomes simple multiplication of the two entities, area and the electric field. Okay, so you can revise this from our last video and come back to this lecture if in case you have missed it. And I gave you an example of a very long thin wire that has been given charge with charge density lambda coulomb per meter, and because of the symmetry we chose a cylindrical Gaussian closed surface. And how did we calculate it? You can check it out. Okay, how do we calculate apply Gauss law for sheet? I gave you an idea so that before you come to this class you must have some idea. Okay, we chose this kind of pillbox cylinder that goes through this infinite long sheet. This is just a part of that, so that just to give you an idea. Okay, this is part of that infinite long or very long thin conducting or non-conducting sheet with a charge density lambda or sigma. Okay, now I gave you a table, this kind of table, okay, that will give you an overview how do we select a Gaussian surface for spherical bodies, for cylindrical bodies, for planar bodies like sheet. Okay, what Gaussian surface would be chosen? Okay, like a point charge or a sphere. Okay, we choose a spherical Gaussian surface around the body symmetrically. Okay, for a wire or a cylindrical rod we choose cylindrical Gaussian surface. For a sheet, long sheet, we choose cylindrical Gaussian surface. Okay, like this. Okay, application I will explain, don't worry. Okay, but this is some idea what kind of Gaussian surface we choose. Okay, you can go through this table and understand it. You don't have to memorize anything, but just an idea. By example and application you will understand it. Why do we choose these kind of surfaces? Okay, you can see for a charged point charge we have already understood it in the last but one lecture. Okay, this is for the sheet that we will discuss today, and the wire or cylindrical rod. Okay, before we begin more examples of rod or sheet, one thing I would like to tell you is a difference between conductors and non-conductors or insulators. You will also get to know about these semiconductors and conductors, insulators in the later chapters. But basic thing, just to give you an idea, in conducting body, in presence of electric field, the charge comes near the surface. Okay, on the surface. Okay, the electrons are loosely bound inside the conducting material, conducting body. Okay, electric charge are free to move from place to place. Okay, unless electric field is zero inside a conductor, electric charge will move around except at the surface. Okay, it goes near the surface. If there is electric field, it will come to the surface. Okay, there won't be any charge left inside the conducting material. Okay, however, in non-conducting body, any sphere or sheet, the charge will remain tightly bound inside. Okay, it won't move to the surface. This is what you have to keep it in mind when a problem is given. It will be specifically mentioned it's a conducting body or non-conducting body. Okay, so let's remember this difference. Okay, and you have to apply the same concept while solving the problem. So let's understand it. What is it? Now in the problem you are given
This is a long cylinder, okay, that has been given a charge with a charge density sigma coulomb per meter square. Okay, this is a conducting cylindrical rod. All right, conducting. Now if it, as I said, if it is given in the problem, it's a conducting material. अगर ये conducting material है तो चार्ज अंदर नहीं रहेगा. ठीक है, आप ये देखो, ये तो फ्रंट व्यू है, ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन व्यू है. चार्ज जो है, ये जो अंदर का पोर्शन देख रहे हो आप, छोटा वाला, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है. ऐसे इमेजिन करो कि ये वायर आपके स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है. ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ निकल के आ रहा है. ठीक है, ये आपके सामने की तरफ से ऐसे दिख रहा है, ये वाला व्यू. बट ये इसमें वायर आप ऊपर से देख रहे हो. ठीक है, ऊपर से देख रहे हो, वायर आपकी स्क्रीन के अंदर से निकल के आ रहा है बाहर की तरफ. तो ये आपको वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दिख रहा है कट करके. ठीक है, तो देखो इसमें चार्ज जो है सरफेस पर टिका हुआ है, सरफेस पर सराउंड हो गया है. देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सिलेंड्रिकल रॉड. ओके, दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग. नॉन कंडक्टिंग में पूरा थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड रहता है. अगले एग्जाम्पल में मैं समझाऊंगा. ठीक है, तो सारा का सारा चार्ज जो है सरफेस पर आ गया है. ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है, सिमेट्रिकली these would be going radially outward. Okay, like this, radially outward uniformly, correct? And this is infinitely long, so for the entire length of this rod the electric field lines would be going radially outward. Okay, like this, for the entire length, पूरी लंबाई पर रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी रेडियली आउटवर्ड जा रही होंगी. ठीक है, किसी भी डिस्टेंस आर पर अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे ऐसा सिलेंड्रिकल, अभी ऊपर से आप देख रहे हो तो ये सर्कुलर दिख रहा है क्रॉस सेक्शन में, लेकिन ऐसा गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल कवर करते हुए अगर आप बनाओगे तो एट ए डिस्टेंस आर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी. ठीक है, क्लियर. अब हम गॉसियन सरफेस हमें पता है कि कैसी बनाते हैं. हमारे आप टेबल पे रेफ़र कर सकते हैं, नहीं तो सिमेट्री के हिसाब से आपने ऐसा गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप में बना दिया एल लेंथ का. ठीक है, हमें निकालना है एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रॉड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो हमने क्या किया, वी ड्रॉ ए hypothetical Gaussian surface around it closed because Gauss law is applicable for the closed सरफेस. सो हमने क्लोज्ड सिलेंडर बनाया जिसका फर्स्ट सरफेस अपर सर्कुलर डिस्क है, ये वाला. सेकंड सरफेस ये कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर है, और थर्ड सरफेस बॉटम सर्कुलर डिस्क है ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, तो ये एल लेंथ का और एक्स रेडियस का सिलेंडर हमने गॉसियन सरफेस बना लिया. ठीक है, अब व्हाट विल डू नेक्स्ट, वी विल अप्लाई द गॉस लॉ. Okay, that is this one, E dot ds in a closed integral, E dot ds is equal to q enclosed upon epsilon naught. And what is q enclosed for this length L? You have been given charge density multiplied by the area, that is 2 pi r into L. Okay, so you get the q enclosed. q enclosed charge enclosed इस एरिया में वायर का कितना होगा L लेंथ के लिए, ये आप एरिया से चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज आपका निकल के आ गया. क्लियर. अब ये जो क्लोज्ड सरफेस है जिसके 3 पार्ट हैं, अपर पार्ट, कर्व्ड पार्ट और ये नीचे का पार्ट सर्कुलर पार्ट, ये 3 पार्ट में हम इसको ब्रेक करेंगे क्लोज लूप को. फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में ई डॉट डी एस ज़ीरो है. देखो, फर्स्ट पार्ट में ई डॉट डी एस और थर्ड पार्ट में ई डॉट डी एस ज़ीरो है. आप अगर लास्ट क्लास का जो वायर का हमने डिस्कशन किया था सेम उसकी तरह है. अब क्यों ज़ीरो है, क्योंकि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर है. ठीक है, कैसे, ये देखो, जो अपर पार्ट है फर्स्ट एरिया, ऊपर वाला डिस्क, ये वाला पार्ट. ठीक है, इस पार्ट के लिए
अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे दैट विल बी वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। कहीं पर भी आप छोटा सा एरिया अगर आपने लिया तो उसके लिए वर्टिकली अपवर्ड होगा, करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड everywhere for this infinitely long rod, electric field is outward, ठीक है। Then the angle made between these two vector is 90 degree. Then the their dot product E dot ds would be 0. The same is applicable for the third surface, bottom circular disk. Any small area chosen on the third Gaussian surface would be downward, perpendicular here, downward, and the electric field would be outward, perpendicular to it, and the angle between these two would be 90 degree. Their dot product would be 0. That is why E dot ds for these two part of the Gaussian surface, surface 1 and surface 3 is 0, ठीक है। surface 1 और surface 3 के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 90 डिग्री हैं एक दूसरे से, इसलिए डॉट प्रोडक्ट उनका 0 रहेगा। तो ई डॉट डी एस पार्ट 1 एंड पार्ट 3 के लिए 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा सिर्फ पार्ट 2 सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ से ये हो गया आपका, सिर्फ इतना बचेगा पार्ट 2, ओके। दिस बिकम्स लाइक दिस, ई डॉट डी एस फॉर सेकेंड सरफेस, and that will be your charge enclosed upon epsilon naught. Now, as I told you that a electric field is equal at a distance r, okay. So you can take this electric field out of this integral because this is uniform at a distance r, okay. So you can take this out of the integral like this here. Let me show you properly, okay. ये इस इंटीग्रल से आपने E बाहर निकालिए क्योंकि E यूनिफॉर्म है at a distance x, and you have to just integrate the ds, and integration of ds is the area of this curved surface of the cylinder, clear। जो curved surface है सिलेंडर का आपको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रल ऑफ ds आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट 2 pi x into l, clear। so E into 2 pi x into l becomes charge enclosed upon epsilon naught। सो उससे आपका ये बन गया E इक्वल टू सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट x। कहीं कोई डाउट कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं बताता हूँ। सिंपली है, सिर्फ चार्ज्ड थिन वायर और इसमें सिर्फ शेप का सिंपल फ़र्क है कि इसकी जो सिलेंडर r रेडियस का है उस पर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं। अच्छा, ये तो हो गया आउटसाइड, तो हमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है कैलकुलेट कर ली। इनसाइड का क्या करें? इनसाइड अभी मैंने बताया कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज सरफेस पर रहता है, अंदर कुछ चार्ज नहीं होता। ये देखो मैंने यहाँ पे डॉट 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 स्मॉल स्मॉल डॉट ड्रॉ किए हैं, देखो छोटा सा दिख रहा है। जो चार्ज प्लस प्लस रेड में दिख रहा है उसके अंदर वायर दिख रही है, और वायर के अंदर डॉट 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 जो सरफेस दिख रहा है वो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है। इफ़ यू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द inner surface of this cylinder, just inside, that means it does not cover the charge of the surface, ठीक है। so inside that surface there won't be any charge. If you apply E dot ds, then E will be, because there is no charge, then electric field inside would be 0. so your Gaussian surface, Gauss law, E dot ds will become like E is 0, so E dot ds is 0. That means Q enclosed, because Q enclosed is 0, so electric field become 0. There is no electric charge inside this Gaussian surface even if you draw, okay, like this, and apply the Gauss law. Because there is no charge, because of application of this formula, the right hand side is 0 here, because Q enclosed is 0, Q enclosed 0 है इस Gaussian surface का, तो right hand formula का 0 हो जाएगा, तो उससे निकल के E जो है 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग बॉडी के अंदर 0 रहता है क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पर होता है। ये ध्यान रखना, आगे मैं आगे और एग्जांपल जब लाऊंगा तो आपको ये बात पूछूंगा, ठीक है, तब ध्यान रखना क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 रहता है कंडक्टिंग बॉडी के। क्लियर? चलो अगला एग्जांपल देखते हैं।
अभी तो हो गया कंडक्टिंग सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर। अगर ये नॉन कंडक्टिंग हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज़्यादा नहीं। नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज जो है सरफेस पर ही नहीं रहेगा, तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनसाइड द होल बॉडी रहेगा। देखो पूरा का पूरा ये जो प्लस साइन रेड में देख रहे हो, सारा चार्ज स्प्रेड है अंदर की तरफ, ठीक है, पूरा स्प्रेड है अंदर की तरफ, यहाँ पूरा बॉडी में स्प्रेड है, पूरे सिलेंडर वायर या सिलेंड्रिकल रॉड कह लो, सब पूरा स्प्रेड है यूनिफॉर्मली। और आपको ये दिया है कि इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलॉम पर मीटर क्यूब है, क्योंकि सरफेस पर यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं है, थ्रू आउट द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। दैट इज वाई इट्स गिवन द चार्ज डेंसिटी एट सिग्मा कूलॉम पर मीटर क्यूब। क्लियर? अब कैसे करेंगे? चलो पहले फर्स्ट वी विल सॉल्व द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द रॉड। ओके, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस हाइपोथेटिकल ऐसा, ये देखो नीचे की तरफ ड्रॉ किया हुआ है ग्रीन कलर से, वो हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया। सिलेंड्रिकली है बट वो एक ऐसा, आपको वर्टिकली देख रहे हो तो ऐसा दिखेगा, सिलेंड्रिकली है पर ये नीचे वाला ऐसा देखो दिखेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और पिछला कंडक्टिंग वाला क्वेश्चन सेम हो गया ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड ही रहता है, और एट ए डिस्टेंस आर, ओके, at a distance r it will be equal, electric field would be same at a distance r from the center of the wire or the cylinder, ठीक है। Now for outside, the what will be, if we apply the Gauss law, what will be q enclosed for the length l cylinder? That will be pi r square l, because it's covering the entire rod, okay, so pi r square into l, ठीक है, multiply sigma, that is the charge density, तो that will be q enclosed, इतना चार्ज enclosed होगा उस गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है, l लेंथ का जो आपने ऐसा लिया है सिलेंडर, ठीक है। आउटसाइड के लिए ई डॉट डी एस, अगर ये फर्स्ट है आपका एरिया ऊपर वाला, सेकंड ये थर्ड है नीचे वाला, और ये कर्व्ड एरिया सेकंड है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, जैसा पिछले केस में डिस्कस किया। सिर्फ बचेगा सेकंड केस, ये देखो, ठीक है, सिर्फ सेकंड केस बचेगा, सेकंड एरिया बचेगा गॉसियन सरफेस का, ई डॉट डी एस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई यूनिफॉर्म है तो ई बाहर निकल गया, इंटीग्रल से इंटीग्रल डी एस बचेगा इक्वल टू 2 पाई एक्स इंटू एल आउटसाइड के लिए, ये हो जाएगा। ऐसे करोगे इक्वेट दोनों साइड्स को, गॉस लॉ के दोनों साइड को, ठीक है। डी एस कितना होगा फॉर एट ए डिस्टेंस एक्स, अगर ये आपका सिलेंडर था, ठीक है, जिसका आपने एट ए डिस्टेंस एक्स निकालना था, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स था अगर, तो 2 पाई एक्स इंटू एल एरिया हो जाएगा, तो ई मल्टीप्लाई 2 पाई एक्स एल इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वैसे ही एप्लीकेशन है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपका डायरेक्टली ई आउटसाइड निकल आएगा, ठीक है, ये जो है ई आउटसाइड निकल आएगा। ये तो हो गया पिछले एग्जाम्पल की तरह ऑलमोस्ट सिमिलर है। अंदर की प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तब क्या करेंगे, हमें ये देखो यहाँ पर एक सेकेंड आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिख रहा है। ये हमने जो गॉसियन सरफेस बाहर की तरफ ग्रीन लाइन से डॉट करके बनाया, ठीक है, ये तो बाहर के लिए था। अब अंदर के लिए इस वायर के छोटा सा ही देखो मैंने ग्रीन डॉटेड बनाया और उसके अंदर भी चार्ज इंक्लोज्ड है, ठीक है। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है ये, ऐसा कि ये जो वायर है आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऊपर से आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
और हमने उसके भी अंदर ग्रीन कलर से एक गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल बनाया है। ऊपर से देखोगे तो आपको सिर्फ सर्कल दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है पिक्चर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड रहेगी, राइट साइड में देखो इसके। ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगी एट ए डिस्टेंस एक्स, अगर हम अंदर जो स्मॉल सिलेंडर ले रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगी, रेडियली आउटवर्ड रहेगी फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द रॉड। अगर आप सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस ले रहे हो अंदर की तरफ, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक्स रेडियस का ही बना रहे हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स रहेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है इस पिक्चर से। चलो अभी यहाँ पे वापस आओ। ठीक है, अब गॉस लॉ लगाते हैं। ये देखो सिलेंडर, मैंने यहाँ पे फ्रंट व्यू में ये छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, सिलेंडर है तो 3 सरफेस होंगी, क्लोज्ड सरफेस पे गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है। अपर सर्कुलर डिस्क 1, दिस वन, देन दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड द डाउनवर्ड सर्कुलर डिस्क। नीचे का, ऊपर का और कर्व्ड सरफेस, 3 सरफेस होती हैं सिलेंडर बॉडी में, क्लोज्ड बॉडी में। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया छोटा सा अंदर। ठीक है, उसका रेडियस एक्स है, एक्स रेडियस पे बनाया हमने। ठीक है, एल लेंथ का, जनरल एल लेंथ लिया। अब क्यू एंक्लोज्ड कितना होगा, इसके लिए चार्ज कितना एंक्लोज्ड होगा, वॉल्यूम डेंसिटी आपको पता है, इसका वॉल्यूम निकालो। देखो यहाँ पे दिस पार्ट इज वॉल्यूम विल बी पाई एक्स स्क्वायर एल, दिस पार्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई द डेंसिटी। ठीक है, तो ये चार्ज हो जाएगा टोटल इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द राइट हैंड ऑफ द गॉस लॉ। लेफ्ट हैंड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, सेम ऊपर का सर्कुलर डिस्क, आपका गॉस लॉ का सर्कुलर डिस्क पार्ट 1 एरिया एंड पार्ट 3 एरिया, उसके लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों 90 डिग्री बनाएंगे, तो उनका ई डॉट डी एस वाला पार्ट 0 हो जाएगा। सिर्फ पार्ट 2 जो कि कर्व्ड सिलेंडर का है वही बचेगा। तो ये देखो, ये ई डॉट डी एस ये आ जाएगा। ई यूनिफॉर्म रहेगा एट ए डिस्टेंस एक्स इनसाइड, इनसाइड ये वाला छोटा अंदर की तरफ ई यूनिफॉर्म रहेगा सारे डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। सो ई बाहर आ गया और डॉट डी एस 2 पाई एक्स इंटू एल एरिया। क्लियर? कोई डाउट रहे क्लैरिफाई कर लेना कमेंट बॉक्स में लिख के। सो ये आपका अंदर के लिए इतना फ़र्क पड़ेगा, एरिया वही रहेगा जैसे पिछले ऊपर वाले एग्जांपल की तरह 2 पाई एक्स इंटू एल, बट राइट हैंड साइड में सिर्फ चार्ज एंक्लोज बदल जाएगा। ठीक है, छोटा चार्ज हो जाएगा क्योंकि हमने अंदर छोटा एरिया, छोटा वॉल्यूम लिया है सिलेंडर के लिए, बस इतना डिफरेंस है। सो ई इनसाइड नाउ बिकम्स सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कैसे करते हैं अप्रोच समझ में आ गया। नॉन कंडक्टिंग में अंदर की तरफ बॉडी के जाना पड़ता है। चलो अभी इसके आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। जितना भी जल्दी आप समझ लो, जितने एग्जांपल समझ लो उतना बेटर रहेगा, क्योंकि सिंपल शेप्स के लिए ही आपके जेई सिलेबस में गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पूछे गए हैं। अब आप ये देखो, ये एक लॉन्ग शीट, ओके, इसको बेटर पिक्चर में आपको, लेट मी शो यू हियर, this one, this is a very long sheet, okay, even spread to the length, हाइट में और लेंथ में पूरा उधर ऊपर की तरफ फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। दिस इज जस्ट द पार्ट ऑफ दैट, सो दैट पिक्चर ड्रॉ करके एक अच्छा सा आपको दिखाया जा सके। ठीक है, वेरी लॉन्ग शीट, थिन शीट, ऑलमोस्ट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल है, काफ़ी बड़ा शीट है। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वो केस वाइज हम डिस्कस करेंगे। चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा की। इसके लिए एज पर द टेबल, एज पर द सिमेट्री, ओके, वी चूज cylindrical Gaussian surface that goes through the sheet and keep it uniform at both the end. Means अगर ये डिस्टेंस x राइट हैंड साइड पे निकला हुआ है इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी इसका x डिस्टेंस बाहर निकला होना चाहिए। समझा?
तो ये यूनिफॉर्मिटी लेके आता है। तो इस तरह का गोइंग थ्रू द शीट हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग शीट से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आता है, ठीक है। इसका एरिया से ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है एवरीवेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ परपेंडिकुलर ही रहता है शीट से, लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही रहेगा, राइट हैंड साइड पे भी यही रहेगा, ठीक है। ऐसा रहता है। अभी क्लियर हो रहा है कुछ पिक्चर, ठीक है। नाउ गेट बैक टू आवर प्रॉब्लम। देखो इस प्रॉब्लम में ये इसका साइड व्यू है, जिसमें आपको ये एक वायर की तरह दिख रहा है, बट ये एक लॉन्ग शीट है, ठीक है। अब ये नॉन कंडक्टिंग ऐसा आपको दिया हुआ है। नॉन कंडक्टिंग में आपको पता है कि चार्ज पूरा का पूरा इनसाइड एंक्लोज्ड रहता है, टाइटली बाउंड रहता है चार्ज, ठीक है, निकल के सरफेस पे नहीं आता है। तो ये एक थिन लेयर ऑफ चार्ज बनेगा, ऐसा पूरा थिन लेयर ऑफ चार्ज है, ठीक है। अच्छा, गॉसियन सरफेस आपको ऐसा चूज़ करना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उस चार्ज के लिए आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो पूरा का पूरा चार्ज एंक्लोज होना चाहिए, पूरा चार्ज एंक्लोज होना चाहिए, जिसके लिए आप गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर रहे हो, जिसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब यहाँ पर हमें इस single layer or a very thin layer of charge, we have to find out the electric field at both the sides, okay, because this only layer of charge is responsible for the electric field on the right hand side as well and on the left hand side also. So we have to carefully select the Gaussian surface that is symmetrically covering the electric field and the charge of both the sides, ठीक है। ऐसा चूज़ करना है कि जिससे कि पूरा चार्ज भी कवर हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल के आ जाए, बट चार्ज पूरा कवर होना चाहिए। जो चार्ज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो आपकी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस में पूरा सेलेक्ट होना चाहिए। ऐसा चूज़ करना है आपको गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो हमने ये सिलेंड्रिकल बॉडी चूज़ कर ली ऐसी, दोनों तरफ एक्स निकला होना चाहिए सिलेंडर का, एक्स हाइट या एक्स लेंथ, ठीक है। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इक्वल डिस्टेंस है, दोनों तरफ निकला हुआ है। दिस इज गोइंग थ्रू द शीट, ठीक है। आप साइड से देख रहे हो तो ऐसा व्यू दिख रहा है। सपोज जो इसका सिलेंड्रिकल जो एरिया है वो एस है, ठीक है। ये वाला जो अपर डिस्क होती है, लोअर डिस्क होती है, कर्व सरफेस होता है, तो अपर डिस्क का एरिया एस है, ऐसा दिया हुआ है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ये बाहर की तरफ होती है परपेंडिकुलर शीट से, ठीक है, दोनों तरफ सेम रहेगी और बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द शीट, ठीक है। अब समझ लेते हैं, ये हमने बना लिया अपना गॉसियन सरफेस बना लिया। एट ए डिस्टेंस एक्स आपसे पूछा है कि शीट से एट ए डिस्टेंस एक्स फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि दोनों तरफ यही चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। अब हम गॉस लॉ लगा देते हैं। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट विल बी योर क्यू एंक्लोज्ड एरिया, कितना है शीट का, हमने कवर कर लिया एस, ठीक है। सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि चार्ज डेंसिटी दी हुई है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर में, तो आपका चार्ज एंक्लोज निकल के आ गया। अब 3 सरफेस होती सिलेंडर की, कर्व्ड और 2 सर्कुलर डिस्क टाइप के, अपर एंड लोअर। तो फर्स्ट सरफेस ये, सेकंड ये कर्व वाला और थर्ड सरफेस ये, ठीक है। अभी ये देखो थोड़ा सा चीज़ बदल गया यहाँ पे। एरिया वेक्टर फॉर 1 and the third Gaussian surface is like this, ठीक है। For this surface also area vector is like this, correct। Any small area that you choose on this circular disk part 1, ये स्मॉल एरिया अगर आप ds चूज़ करते हो तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउट होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ऐसी परपेंडिकुलर है, तो ई डॉट डी एस विल बी बिकम लाइक ई मल्टीप्लीकेशन डी एस, ठीक है। फॉर एरिया 1 एंड एरिया 3 दिस इज एप्लीकेबल, ठीक है। सो दिस टाइम एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल ऑफ वायर एंड द सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर, पार्ट 1 एंड पार्ट 3 विल नॉट बी ज़ीरो,
ठीक है. Which part will be 0 now? This curved part. Okay, if you choose any area, let me draw it for you. Okay, like this is the bigger cylinder. Okay, if you choose any small area ds here, the area vector would be perpendicular to it, correct? However, the electric field is perpendicular to the surface of the sheet. ये sheet है आपकी, ठीक है. Then these two are making 90-degree angle, area vector and the electric field. So E dot ds for the second surface, Gaussian surface, will be 0. Clear? Any area that you choose, okay, electric field would be perpendicular to the area vector for the curved surface or second surface of the Gaussian surface that we have chosen for this sheet. Clear? So now the only second part would be 0 of the Gaussian surface, and part 1 and part 2 will remain here as a simple multiplication of electric field and area vector. And both are similar also, because electric field is similar at the same distance and area is also same. Clear? So it will become like 2ES. Right hand side is our sigma s upon epsilon naught. So E will become like sigma upon 2 epsilon naught. ठीक है. ये हमें गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करना है जिससे कि पूरा चार्ज जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो कवर होना चाहिए. ठीक है. अभी देखो हमने क्या किया, कंडक्टिंग शीट ले ली, ये वाला पार्ट कंडक्टिंग शीट. ठीक है. कंडक्टिंग शीट में आपको बताया मैंने कि चार्ज अंदर नहीं रुकता है, चार्ज सरफेस पे आ जाता है. देखो यहाँ पर भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी आ गया. ठीक है. क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि चार्ज डेंसिटी जो है सरफेस पर सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पर भी है सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ का अलग अलग कैलकुलेट करना इज़ नॉट गुड आइडिया. ठीक है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड का आपके हिसाब से यहाँ पर राइट हैंड साइड का, ठीक है, राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं सिर्फ राइट हैंड का चार्ज लेके, क्योंकि ये जो चार्ज है रिस्पॉन्सिबल है इस तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अब चूज़ तो हमें पता है क्या, गॉसियन सरफेस प्लेन शीट के लिए हम सिलेंडर चूज़ करते हैं. सिलेंडर चूज़ करेंगे, नेग्लिजिबल थिकनेस है तो सिलेंडर तो क्रॉस कर जाएगा, पूरा गो थ्रू हो जाएगा, शीट के आर या पार हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ तो थिकनेस होगी ना इस शीट की. तो ऐसा फाइन लेंथ का चूज़ करेंगे और इंसर्ट करेंगे शीट के अंदर कि वो ऑलमोस्ट दैट इज़ गॉन इनसाइड द राइट हैंड साइड सरफेस, बट इट इज़ नॉट टचिंग द लेफ्ट हैंड सरफेस. It is not touching the left charge. Okay, this Gaussian surface. Okay, the area 1 is not touching the left surface, but it is only going just inside the right hand side surface. ठीक है. बाकी सिलेंडर आपका x लेंथ का है, शीट से इस तरफ x लेंथ का, आप जहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है. ठीक है. अब देखो फॉर एरिया 1, ध्यान से सुनो, एरिया 1 जो है जस्ट शीट के अंदर जो प्लंज्ड है, अंदर घुसा हुआ है, एरिया 1 इंसर्टेड है इनसाइड द शीट. उसके चार्ज 0 होता है, आपको पता है शीट के अंदर कोई चार्ज नहीं है. सो गॉसियन सरफेस का राइट हैंड साइड क्यू एंक्लोज्ड विल बी 0. So ultimately E dot ds will become 0 because there is no charge inside for the Gaussian surface 1 I am talking about. Clear? Because this is inside the sheet, and for conducting material charge does not remain inside, it comes on the surface. ठीक है. तो पार्ट 1 0 हो गया. पार्ट 3 हमारे ऊपर के तरह ही है. ठीक है. ओके, सॉरी यहाँ पे पार्ट 3 लिख दिया है मैंने बाय मिस्टेक, ह्यूमन एरर. ओके, सॉरी फॉर दैट. सो ये दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, दिस इज़ फॉर पार्ट 2. ओके, कर्व्ड सरफेस जो है
उसके लिए ई डॉट डी एस, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कुछ भी चूज़ करोगे वो परपेंडिकुलर होगा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो सेकंड सरफेस जो ये कर्व्ड सरफेस ये बना है, इसके लिए ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये रॉन्ग लिखा है, थर्ड सरफेस का लिख दिया मैंने, बट ये सेकंड सरफेस के लिए। सो ई डॉट डी एस विल बिकम ज़ीरो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल. So for part 1 of the Gaussian surface and part 2 of the Gaussian surface, E dot ds will become 0. Only part will remain is the part third. Okay. So now your Gauss law becomes like this. Okay. Closed integral E dot ds will become open integral part 2. सॉरी यहाँ पे अभी ये 3 होगा, ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है, वो पार्ट 2 हो गया ऊपर वाला और ये पार्ट 3 हो गया, ठीक है। सो ये होगा ई डॉट डी एस फॉर एरिया 3 एंड दैट विल बिकम सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई डॉट डी एस विल बिकम व्हाट, ई मल्टीप्लिकेशन एस, एस इज द एरिया सर्कुलर डिस्क पार्ट 3, ठीक है। सो ई एस विल बिकम सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई विल बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थोड़ा सा एरर हो गया, अदरवाइज बाकी सब वही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ठीक से कर भी लोगे। सो अभी ये सिंपल शेप्स के लिए मैंने बता दिया, आगे जब मैं पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल जो पिक्चर में लेके आऊँगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के डिस्कशन में लेके आऊँगा, तो प्रॉब्लम का लेवल, कंडक्टर और किरचॉफ्स लॉ, सर्किट्स के डिस्कशन करूँगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होंगी, तब आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दोज थिंग्स इन द अपकमिंग लेक्चर्स. ओके, कीप लर्निंग. थैंक्स.